कहा कि अरे! तुम्हारा बच्चे का लीवर अभी तक इसको क्या कहते हैं मतलब फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ। तुम्हें अभी बच्चे को निकालना होगा, नहीं तो बच्चा क्या। तो हम लोग ड्राइव करके गए थे, मतलब मेरा पत्नी का ऐसा हालत हुआ, मैं उस दिन कभी भूल नहीं सकता। बच्चे का दर्द वो अलग है, लेकिन उस दिन उसको जो डर लगा। This is the Birth Agni podcast, the fire that brings us alive, that burns myths and opens a channel of authentic natural birth stories. This show debunks the many myths of the medicalized births, showcases the plethora of choices a pregnant couple can make to embark on their empowered birth journey. I'm Divya Kapoor, a certified birth and lactation counselor and an aspiring traditional birth attendant. Let's get the flames blazing high. Today we are going to hear the home birth story of Praneshwar Das ji and Madhuri ji. They are ISKCON devotees. They are in Mayapur, Kolkata, where everybody calls each other. All the women are called Matajis and all the men are called Prabhus. So you will hear Madhuri referring to her husband as Prabhu all along the conversation. Like the previous conversations, this episode was recorded in Hindi, but I've added the audio subtitles in English. Do let me know, do write to me. You can also message on Spotify app directly how you find this arrangement, if this works for you and it helps you understand the episode better. And do you want me to make some changes to this? It will be really, really helpful. Thank you so much. Before we even begin, I apologize for the delay on this episode. This was to be out on Wednesday, but we took up Sunday. Let's begin now. नमस्ते प्राणेश्वर दास जी और माधुरी दासी जी। आज हम पॉडकास्ट पे आपके बारे में बात करेंगे, आपके बर्थ के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपने बहुत अहम डिसीजंस लिए। और हम इस बारे में बात करेंगे कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब सारा कुछ हो रहा था। तो माधुरी जी, आपको कैसा महसूस हो रहा था? प्राणेश्वर जी, आपने डिसीजन जब आपने लिया दोनों ने कि हमें घर पर बर्थ करना है, तो उसमें आपको कहाँ कहाँ लगा कि हम ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? घर वालों का क्या कहना था? आप और आपका डिसीजन स्ट्रॉन्ग कैसे होता गया? तो आप वहाँ से बताइए कि जब आपको पता पड़ा कि अब एक आपकी ज़िंदगी में आप पेरेंट्स बनने वाले हैं, तो तब आपने कहाँ से शुरुआत करी? आप हॉस्पिटल गए पहले या आपके घर में भी पहले घर में बच्चे हुए हैं? माधुरी जी। जब मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब मुझे एक ही ख्याल आया कि मैं घर पे कुछ होगा तो बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारे मायापुर में एक माता जी हैं जिनका ऐसा हुआ, तो मैंने सुना था ये। तो मैंने सोच लिया था कि मैं घर पे करूँ, क्योंकि मुझे इंजेक्शन वो हॉस्पिटल में बहुत डर लगता है मुझे। तो मैंने प्रभु जी से ऐसा बात किया कि मुझे घर पे करना, आप कुछ ऐसा कीजिए, मुझे घर पे कुछ करना है। तो प्रभु जी का उसके बाद से सब प्रभु जी का आइडिया डिसीजन या सब कुछ था। So I asked them, Namaste Praneshwar Das ji and Madhuri ji. Today we'll discuss all about your birth experience. Madhuri, your decision to birth at home. How did you feel all about it? How did the family respond to it? How did this decision become stronger with time? And let's begin here. When you learned you were expecting, how did you approach the pregnancy? Did you go to a hospital at first? Madhuri says, when I learned I'm expecting, I thought I will give birth at home and it will be good. I had heard of one woman here in Mayapur who had birthed at home. So I decided to go with it because I am anyway scared of needles and hospitals. So I talked to Prabhuji, that is my husband, about it. He supported me and took it forward. और आपको कैसा लगा था उस वक्त? आपको भी था कि घर में ही आपने भी वो कहानी सुनी थी जो माधुरी जी ने सुनी थी? हरे कृष्णा। तो पहले जब हम लोग प्लानिंग किए कि हाँ, हमें अभी हमारा फैमिली एक्सटेंड करना है, तो तब हम दोनों ने मिल के जब प्लानिंग किया, तब इसके बाद मैं पहले से ही जानता था इसको सुई, हॉस्पिटल, लाइट्स वगैरह, डॉक्टर, ये सब उसको बहुत ही डर लगता था। तो इसलिए इट्स लाइक ए ब्लेसिंग फॉर हर
ऐसा मैं कह सकता हूँ कि वो पहले से ही उसको नेग्लेक्ट करने का एक माइंडसेट था। तो वो हमारे एक यहाँ पर एक पड़ोसन हैं जिनका कृष्ण चैतन्य प्रभु जी और प्रिया माता जी दोनों का भी घर में ही हुआ था। तो वो सुनने के बाद हमारा डिसीजन और भी मतलब डिटरमाइन कह सकते हैं कि और भी स्ट्रांग हो गया। Praneshwar Dashi, had you also heard about the story Madhuriji is talking about? The one about the home birth? Did you also feel aligned with the idea from the beginning? Praneshwar Dashi says, Hare Krishna. First, when we planned to extend our family, I knew she was always scared of hospitals, lights, etc. It was a blessing for her that she had an inclination from the beginning. Listening to our neighbor's story of home birth, our resolve became stronger. तो इससे पहले मैं एक्चुअली थोड़ा अगर मतलब इंट्रोडक्शन से चालू करूँ तो ये अच्छा रहेगा कि क्योंकि हम जिस जगह पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसको मायापुर धाम कहा जाता है। तो धाम इट्स लाइक ए वेरी ब्लेसिंग प्लेस। ठाकुर जी का आशीर्वाद, साधु संत लोगों का आशीर्वाद, सब कुछ मिला के इट्स लाइक ए हेवन इन द वर्ल्ड हम कह सकते हैं। तो इस जगह पे रहने के बाद मैंने दो तरीके से मेरा पत्नी को और मेरे बच्चे को मैं जन्म देना चाहता था। मेरे पत्नी को सपोर्ट और मेरे बच्चे का जन्म एक था आयुर्वेदिक, या फिर आप कह सकते हो कि हजारों साल से हमारे मुनि ऋषि, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे एंसेस्टर जैसे वो लोग प्रैक्टिस करते थे, उनका आइडिया कैसा था, क्या था वो आइडिया, वो मैंने स्टडी किया। मेरे बुक शेल्फ में अगर आप देखोगे तो ऐसा बहुत सारे बुक्स ओनली ऑन प्रेगनेंसी। फर्स्ट है कि मैं और मेरे पत्नी ने तो डिसाइड ही कर लिया चाहे कुछ भी हो हमें हॉस्पिटल नहीं जाना। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर लोग कुछ किसी न किसी तरह कुछ भी कह के मेरे पत्नी को हमेशा के लिए ज़िंदगी भर के लिए इसको पैरालाइज्ड बना देगा। मतलब पेट काटो, बच्चे निकालो, बस। आपने सुना था इस बारे में इससे पहले? हाँ, मेरे फ्रेंड्स वगैरह, मेरे अगल बगल में रिलेटिव्स सब, मतलब आज तक मेरे इस 30-32 सालों में जितना भी मैंने केसेस सुना है सारे केसेस ऐसे ही है, गया हो गया। और इसके बाद वो तो माँ बच जाता है कुछ दिन के लिए, लेकिन इसके बाद जो उनका सारा जिंदगी पड़ा रहता है। कभी कभार बात होता है फैमिली टॉक्स के, वो जब सुबह नींद से जगते हैं तो आधा घंटा उसको ऐसा लगता है कि कोई इसके पीछे से कोई खींच के रखा है, कुछ बैक पेन होता है। बैक पेन होता है। 1.5 साल हो गया, लेकिन मेरा पत्नी सिर्फ हमारे यहाँ पर 40 दिनों का एक औसोच माना जाता है, कॉन्टामिनेटेड डेजेस। सो बस 40 दिन से पहले मेरा पत्नी तो ठीक ठाक है, वो कह रहा है कि मैं कब किचन में जाऊंगा, मैं कब घर का काम करूंगा, ऐसा। तो दैट्स द डिफरेंस। Here in Mayapur, Kolkata, the blessed land of Krishna, I wanted our journey to be aligned with Ayurveda. I studied how our rishis, munis, and ancestors approached pregnancy and birth. Backed by it, then surely, to birth at home seemed fine, seemed logical. Because if we go to the hospitals, they will find a way to cut her open and get the baby out. Had you heard about this before? The hospitals doing routine cesareans? I ask. Yes, in my 35 years of life, most cases I have heard of are like this. They paralyze the women. My sister-in-law still has immense back pain post-cesarean. But my wife, after 40 days of traditional prohibition, was energetic to go about work. पर आप बिल्कुल भी नहीं गए थे अस्पताल शुरुआत में? हाँ, मैंने गया था। मैं गया था, मैं वो आ रहा हूँ बस। तो मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को प्रायोरिटी दिया। और सेकेंडली है जो स्क्रिप्चर्स, क्योंकि हमारे शास्त्र में कुछ संस्कार कह के कुछ है। तो अगर चालू से गर्भदान संस्कार, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, ऐसा करके बहुत सारे संस्कार है। ये जो संस्कार है ऐसा नहीं कि मन में आए तो कर लिया, नहीं, हर एक मंत्र शक्ति है। आज भारत भर में जाएंगे तो देखेंगे हर एक जगह में योगा सेंटर, मंत्रा सेंटर खुल के रखा है।
इसका कुछ एक पावर है, इसीलिए तो वो खुला है। तो मैं उस मंत्र शक्ति को या फिर वो संस्कार को मेरे बच्चे को देना चाहता था। तो एज आई एम ए डिवोटी फैमिली, बिलोंग्स टू डिवोटी फैमिली, आई एम ए ब्राह्मणा, सो दैट्स वाई उसके बारे में मुझे जानकारी था। तो मैं बच्चे लेने के लिए जो पहला स्टेप्स होता है कंसीव, उसको हमारे शास्त्र की भाषा में कहा जाता है गर्भदान संस्कार। उसी दिन हमारे घर में यज्ञ हुआ था, ठाकुर जी का बहुत अच्छी तरह से पूजा पाठ होने के बाद शुभ मुहूर्त देख के हम वो कंसीव किया। इसके बाद तीसरे महीने में पुंसवन कहा जाता है। इसके बाद 7वें महीने में या फिर 5वें महीने में इसको सीमांतोन्नयन कहा जाता है। जैसे डॉक्टर के पास जाएंगे या फिर किसी बुजुर्ग के पास, अभी तेरा बहुत दिन हो गया, बाहर मत जा, ऐसा मत कर, कुछ बुरा नज़र लग जाएगा, ऐसा वैसा। तो इन द शास्त्र की भाषा में इसको कहा जाता है प्रोटेक्टिंग द ऊम्ब। स्पेशली कुछ मंत्र रहता है, कुछ जैसे नीम का पत्ता, मस्टर्ड ट्रीज, ऐसा ऐसा कुछ करके मंत्र के साथ वो उसको गले में पहन के, इट्स लाइक फॉर द प्रोटेक्टिंग योर ओम। इसके बाद जो आता है जातक कर्म कहा जाता है। जातक कर्म का मतलब बच्चा अभी सॉरी, इससे पहले शोषयंती होमा होता है। शोषयंती होमा का मतलब है कि हम ठाकुर जी को प्रे करेंगे, हे ठाकुर जी इस 9 महीने तक तुम मेरे बच्चे को संभाल के रखे हो, अभी प्लीज़ इसको निकालो, वो अंदर कष्ट उसको हो रहा है। तो हम ठाकुर जी को प्रे करते हैं, इसको शोषयंती होमा कहते हैं। होमा का मतलब यज्ञ, एक यज्ञ होता है इसके लिए, ठाकुर जी को प्रे करने के लिए। तब ठाकुर जी प्रसन्न होके हमारे ऊपर तो इस बच्चे को उस कष्ट से निकालते हैं। इसके बाद होता है जातक कर्म। जातक कर्म का मतलब यही होता है बच्चे अभी निकल गया, बच्चे निकालने के बाद उसका कॉर्ड जो है वो अभी तक कटा नहीं, और उसने अभी तक फर्स्ट जो माँ का दूध अभी तक पिया नहीं, उसी टाइम पे हाँ डॉक्टर या फिर मॉडर्न साइंस कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बच्चे को पहले उसको कहा जाता है कि कुछ घी जव के साथ उसके मुंह में सोने के चम्मच, अगर कोई ब्राह्मण हो तो सोना, अगर कोई क्षत्रिय हो तो चांदी, उसके हिसाब से तो उसको टच करवाना पड़ता है। कि इससे क्या होता है, शास्त्र में कहा जाता है जो ये सोना जो है, हम लोग देख सकते हैं हमारे राजा जो थे, राजा जमींदार जो लोग थे, वो लोग सोने के थाली यूज़ करते थे, वो चांदी के ग्लास यूज़ करते थे। क्यों? क्योंकि ये जो सोना या फिर चांदी, उसमें कुछ ऐसा कुछ चीज़ है जो हमारे शक्ति, हमारे बुद्धि, हमारे ज्ञान को वर्धित करता है। तो इसलिए बच्चे को उस मंत्र से अगर कोई उसको चटाता है, देखिए वो अभी अभी जन्म लिया, तो ऐसा नहीं कि उसको खिलाओ, नो, इट्स जस्ट लाइक ए पिंच, इट्स लाइक ए टच करवाना पड़ता है। वो करवाने से शास्त्र कहा जाता है बच्चे इंटेलिजेंट बनते हैं, बच्चे का ज्ञान बढ़ता है। उसके बाद उसको कटना है और माँ का दूध जैसे होता है। ये था क्या कहते हैं, शास्त्र। अभी आपका जो प्रश्न था कि डॉक्टर के पास है, हाँ मैंने कहा हॉस्पिटल जब हाँ हमें घर में वो गर्भधान संस्कार के बाद हर एक दिन हमारे ऐसा टेंशन में था, क्या हुआ, होगा नहीं होगा, माधुरी कुछ आइडिया, कुछ फील हो रहा है, ऐसा ऐसा करते करते शायद 3 हफ्ते या फिर 4 हफ्ते ऐसा होगा, या फिर 5वें हफ्ते, वो माधुरी को ज़्यादा पता होगा, हमने टेस्ट किया और इट्स पॉजिटिव। Did you not go to the hospital at all then? I ask. Yes, before that, I would like to talk about our scriptures, yoga. And there are a lot of yoga centers in the world now because there is a power in our tradition, and hence I followed mine. The day we planned to conceive, we did a Garbhadan Sanskar, a prayer ritual of Krishna for conception, and we conceived at an auspicious time. Then there are rituals at different months. One at 5th month, which is for protecting the womb using neem leaves and mustard tree. A prayer is then locked in a necklace, which is worn by the woman. Around 9 months, a yagya, a fire ritual, is done to ask Krishna to help baby to come to earth side. When the baby is born, a concoction of ghee in a gold or a silver spoon is touched by the baby's tongue
believing it increases the mental ability of the baby. It is not given to eat, the baby is just born, just a touch, and then the umbilical cord is cut and breastfeeding begins. Now, your question, did we go to the hospital? Yes, we did. And after the first ritual, that is the Garbhadan Sanskar for conceiving, we were waiting. And I used to ask Madhuri, what happened? Do you see some signs? And then about 4 or 6 weeks, the test came out to be positive. तो पॉजिटिव होने के बाद क्या करें? तो पहले हम डॉक्टर के पास गए। हमारे लोकल डॉक्टर, लोकल गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनके पास गए। वो बहुत सारे मेडिसिन वगैरह, ऐसा करो, वैसा करो, वो करो, वह करो, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। नॉट इवन आई टेक द सप्लीमेंट्स। यस, सप्लीमेंट्स नहीं, सप्लीमेंट नहीं, विटामिन्स एक्चुअली। वो गौरी माता जी जो थे, कुछ सप्लीमेंट्स हमें दिया। इसको मतलब इट्स नॉट एलोपैथी। हाँ, आप आप हर्बल हर्बल, सप्लीमेंट्स राइट, की हर्बल बात कर रहे हैं। सप्लीमेंट, हाँ, राइट। आपने वो लिए वो और लिए। डॉक्टर के एलोपैथिक नहीं, सप्लीमेंट्स नहीं नहीं लिए। लिए। इवन नॉट इवन द, इसको क्या कहते हैं, फॉलिक एसिड, आयरन भी नहीं लिए, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है, अगर हम मैंने पाया है, ये मेरा मानना है कि अगर स्त्री को, गर्भवती माँ को वो एलोपैथी, फॉलिक एसिड, आयरन टेबलेट खा जाता है तो उसका जो गर्भथली है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और उसके कारण जब बच्चे को निकालना होता है वो फटता नहीं। लेकिन इसके ऑल्टरनेटिव बहुत सारे आयरन सोर्सेस है। आप लोहे की कढ़ाई में कुक करो, आप एक कुलेखाड़ा शाक कहा जाता है, पता नहीं हिंदी या फिर उसका अलग जगह पे अलग सा नाम हो जाता है, उसमें बहुत आयरन है, आप उसको खाओ। और भी बहुत सारे फ्रूट्स है जिसमें आप आयरन, अनार खा सकते हो ऐसे। तो मैं मेरी पत्नी को वही सब दिया। नो, डोंट टच द एलोपैथी टैबलेट्स, क्योंकि वो तुम्हें एक साइड से अच्छा करेगा तो और भी 10 साइड से उस खराब कर देगा। ऐसा चलता रहा। फिर 3-3.5 महीने के बाद हमने फर्स्ट टाइम यूएसजी किया। सब कुछ नॉर्मल था। फिर 8वें महीने में हम एक बार डॉक्टर के Then we went to the hospital. The doctor suggested allopathic supplements, but I did not take any of that, even folic acid and iron supplements. Gauri Mataji, the midwife, she gave us herbal supplements. We took it. Also, because according to Ayurveda, these allopathic supplements make amniotic sac too strong and it does not break. So we avoided. And other than that, there are so many iron sources that one can take, such as cook in an iron pan, kadhai. I encouraged my wife on that. After 3.5 months, we did an ultrasound and then another ultrasound at around 8th month. डॉक्टर के पास गए। आपने इसके बीच में कोई और अल्ट्रासाउंड नहीं कराया? नहीं, 3rd मंथ, और 3rd एंड हाफ हाँ, एंड और ये आपने खुद से किया? खुद से इससे किया। पहले कोई आपको आपने कोई बर्थ एजुकेशन नहीं ली थी? किसी के साथ आप काम नहीं कर रहे थे? ये नहीं आपको नहीं खुद नहीं, से ये खुद से, हाँ। ये खुद से था ऐसा कि नहीं कि कोई अल्ट्रासाउंड मुझे नहीं? कुछ के नहीं, बस मुझे ऐसा समझ में आया कि हाँ मुझे करना है। तो गौरी माता जी और शायद तपस्या माता जी से मैं भूल गया कितने महीने से मैं, लेकिन लगता है मिडल ऑफ द प्रेगनेंसी से मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था। तो ऐसा ऐसा करते 8वें महीने में फिर से अल्ट्रासाउंड किया। फिर डॉक्टर को एज यूजुअल चेक करवाना पड़ता है। डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा है। डॉक्टर ने तो कहा, तब शायद 8-8.5 महीने ऐसा चल रहा है, कहा कि अरे तुम्हारा बच्चे का लिवर अभी तक इसको क्या कहते हैं, मतलब फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, तुम्हें अभी बच्चे को निकालना होगा, नहीं तो बच्चा गया। तो हम लोग ड्राइव करके गए थे। मतलब मेरा पत्नी का ऐसा हालत हुआ, मैं उस दिन कभी भूल नहीं सकता। बच्चे का दर्द वो अलग है, लेकिन उस दिन उसको जो डर लगा, जब ये नेचुरल है कि डॉक्टर कह रहा है कि तुम्हारा पेट में जो बच्चा है उसका लिवर फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, ऐसा कुछ, तुमको अभी मतलब विदिन 24 आवर्स तुमको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ेगा। उसका रोना मुझे अभी भी याद आ रहा है। फिर मैंने उसको समझाया कि देखो, हम आयुर्वेदिक ट्राई करते हैं, शास्त्र को मान सकते हैं, हमारे जो सीनियर लोग हैं हमारे घर में उनको मान सकते हैं डॉक्टर, लेकिन एक है जो सबके ऊपर, वो है भगवान।
अवश्य रक्षिवे कृष्ण, ये शास्त्र का एक श्लोक है। इसका मीनिंग ऐसा होता है कि ठाकुर जी कृष्ण तुमको अवश्य रक्षा करेगा, किसी भी हालत में रहो, कुछ भी रहो, अगर तुम उसके ऊपर डिपेंड हो तो तुमको वो रक्षा करेगा। हम उसको पुकार नहीं सकते, हम उसका भक्त नहीं बन सकते, वो ऐसा नहीं देखते। ही इज़ नॉट ए सेल्फिश मैन, ही इज़ ए गॉड, ही इज़ ए भगवान। सो वो अवश्य रक्षिए। कूल। तो फिर आपने उसके बाद कहीं चेकअप कराया, नहीं, किसी से बात और करी इस हाँ, बारे बात में? किया, बात किया। फिर मैंने शायद तपस्या माता जी से बात किया, तब तक आप गौरी तपस्या के साथ हाँ बर्थ क्लासेस ले रहे थे? हाँ, फिर मैंने गौरी माता जी को फ़ोन किया, और 2-3 मेरे गौरी माता फ्रेंड्स। जी मिडवाइफ हैं? हाँ, हाँ, वो मिडवाइफ है। पहले हमारा जो प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ था उनके अंडर ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन कुछ कारण उनको देश छोड़ के जाना पड़ा। तो फिर गौरी माता जी ने इस तपस्या माता जी को रेफ़र किया, तो फिर हम उनके पास आए। आ, तब तपस्या माता जी से हम बात किए, और हमारे कुछ डॉक्टर्स फ्रेंड, मेरा जो एक साथ हम स्टडी किए थे स्कूल कॉलेजेस में, तो जो मेरे डॉक्टर एमबीबीएस फ्रेंड्स वगैरह, अरे तू अभी लेके जा, डॉक्टर गलत नहीं कह सकता। लेकिन मैं कूल रहा। मेरे तपस्या माता जी या फिर हम लोगों से कुछ नहीं होगा, शांत। ऐसे 38 वीक्स, 39, 40 ऐसा चल रहा है, और हमारा टेंशन तो मतलब टिक में है। You did not do any ultrasounds in between, the third one and the eighth one, right? And had you taken any birth education by then, which helped you decide this? I ask. Praneshwar Dasji says, no, we ourselves decided, and our midwife Gauri and Tapasya were associated with us, so we were guided. And around the 8th month, something happened. The doctor scared us that the liver of the baby is not functioning, and we need to urgently get the baby out. I remember her crying in the car. It was painful. I cannot forget it. Then I explained to her, see, we should try Ayurveda. We can only do that. We can believe in scriptures, we can believe in our ancestors, but above all, there is a God. There is Krishna. We can only trust him. He does not differentiate. Let us trust him and see. Did you take a second opinion? I add. Praneshwar says, yes, we did. I asked Tapasya Mataji, Gauri Mataji. By then, had you begun taking birth classes from Tapasya? Gauri Mataji was your midwife, right? I confirm. Yes, she had to leave the country for some reason, and then she referred Tapasya Mataji, and I also spoke to some of my doctors here. They said, take her now, the doctor can never be wrong. But I was composed. Tapasya Mataji encouraged, everything will be fine, be positive. And then the last few weeks passed, and there was no sign of labor. मतलब अभी तक नहीं हो रहा है, तो बस माता जी भी, तपस्या माता जी भी बार बार बच्चे का हार्ट बीट ठीक है, हाँ ठीक है, बच्चे का मूवमेंट हाँ ठीक है, तो बस आप और हार्ट कुछ बीट वगैरह घर पे खुद ही चेक कर रहे थे? नहीं। हुँ। उस टाइम गौरी माता जी का कुछ असिस्टेंट था, इंदुलेखा माता जी और हरिप्रिया हरिणी माता जी, ये दोनों को गौरी माता जी ने अपॉइंट किया था कि तुम इनका होम बर्थ करवा। तो जब भी प्रॉब्लम होता था, मैं उनको बोलता था, वो आके हार्ट चेकअप वगैरह वगैरह जो कुछ करता था। लेकिन मुझे पता नहीं ये बोलना सही रहेगा कि गलत, लेकिन मुझे पता नहीं, तपस्या माता जी के ऊपर मेरा बहुत विश्वास था, क्योंकि उनका जो स्टेप्स या फिर उनका जो प्रोसेस था, वो मतलब मुझे ऐसा लगता था इट्स ए प्रैक्टिकल हुँ। प्रैक्टिकल समझ लगता था। समझ आता था कि समझ आपको। अरे हाँ, वो जो ये मैं सच बता रहा हूँ कि फिर 41, 42 वीक्स आ गया। फिर उस दिन एक जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा एक महोत्सव था, उसको कहते हैं उड़न षष्ठी। हुँ। जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को उसी दिन फर्स्ट टाइम वो क्या कहते हैं, विंटर क्लॉथ उनको ऑफर किया जाता है, सर्दी का कपड़ा पहली बार पहना जाता है। उसी दिन सुबह 7 बजे से इसका पेन चालू हुआ, और फिर 31st नहीं, हाँ, 29, 30 एंड 1st December in the morning, 4:40 or 3:40,
3:40 को हमारा बच्चा जन्म लिया। We reached out to Tapasya Mataji. She said, if the heartbeat is okay and the movement is okay, everything is fine. Were you checking the heartbeat at home by yourself? I asked. No. Gauri Mataji had appointed her assistants Haripriya Harini Mataji and Indulekha Mataji for our home birth. We called them when we needed. I had huge trust in Tapasya Mataji. Then 41st week passed and 42nd week came and there was nothing. And then there was this auspicious day of Lord Jagannath, an avatar of Lord Krishna, where he is offered winter clothes for the first time. And that was the day her contraction started. माधुरी जी, अब आपको बताना पड़ेगा कि दर्द जब चालू हुआ तो कैसा था, कैसा आपको महसूस हो रहा था? जब मेरा थोड़ा-थोड़ा दर्द चालू हुआ, तब मुझे लग रहा था कि अब तो होने वाला है कुछ अभी। मुझे दर्द बहुत कैसा लग रहा था जब दर्द? थोड़ा-थोड़ा कैसा दर्द था? पेट में मतलब दर्द था, पीठ में दर्द था? पीठ में दर्द था थोड़ा और पेट में थोड़ा दर्द था, ऊपर पेट में दर्द था थोड़ा-सा। तो मुझे लगा कि अभी तक चालू हो रहा है। डर लग रहा था बहुत ज़्यादा कि कैसे कर खुशी पाऊँगी। खुशी भी थी? खुशी थोड़ा-सा था वो, लेकिन मतलब डर बहुत ज़्यादा था कि कैसे होगा ये सब कुछ, मैं कर पाऊँगी या नहीं। तो ऐसे करते-करते 10, 11, 12 तक मेरा दर्द चला, उसके बाद बंद हो गया मेरा दर्द। एकदम नहीं था, उसके बाद फिर रात को चालू हुआ। रात से उसके अगले दिन सुबह तक मेरा अच्छा दर्द था। उसके बाद फिर 12-1 बजे बंद हो गया मेरा दर्द। 30 नवंबर को। और इन सब के बीच में जब आपका दर्द बंद हो गया तो हाँ। आप सोए थे, कुछ सो खाया रहा था था, आपने? हाँ, मैं सोए सो रही थी, कुछ खा रही थी, हाँ, मैं चल रही थी। ऐसे करते-करते मेरा दर्द 8 बजे से एकदम मैं फुल लेवल मेरा चालू हो गया। बहुत दर्द हो रहा था, मैं सो नहीं पा रही थी, कुछ खा नहीं पा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। लेकिन मुझे मेरे प्रभु जी वो उन्होंने मुझे कहा कि देखो तुम अगर जो तुम्हें अच्छा लगे हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जो डिसीजन लोगे। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे घर पे ही करना है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। I ask, Madhuri ji, you'll now have to sit down and tell us about your labor experience and how the contractions felt like to you. Madhuri begins. When contractions began, I felt now that the baby is coming. How are the contractions like? I ask. She says, they were little in the back and a little in the front. I was scared and a little happy, but overall scared. The contractions were there till 10 and then they stopped and then they began again in the night and continued the next day and again stopped in the day and picked up in the night, 8 p.m. And then they were very intense. I could not rest then. And I thought, I do not know if I am doing everything okay or not. But my husband said, whatever you decide, we are with you. I decided even then to stay at home. उस वक्त जब आपसे दर्द नहीं नहीं, झेला जा रहा हाँ। था, हिम्मत टूट रही थी, हाँ। तब भी आपने हॉस्पिटल डिसाइड किया कि नहीं जाना अब है भी मुझे। नहीं जाऊंगी नहीं मैं। जाऊँगी, मैं घर पे ही करूँगी। तो ऐसे करते-करते 11 बजे मुझे मतलब सब लोगों ने बोला कि बच्चा आ रहा है, धीरे-धीरे आ रहा है। तब मुझे लगा कि हाँ, मैं कर पाऊँगी ऐसा, घर पे मेरा होगा। तो ऐसे करते-करते 4 बजे मेरा डिलीवर हो गया। Then late at night, at 11 p.m., everyone said the baby is coming. Then I felt, yes, the baby will be born at home. And at 4 a.m., the baby was born. बच्चा तो ये हिम्मत की वजह से ही हुआ? बहुत जी, मुझे हिम्मत नहीं आ रहा था। मुझे मेरे साथ जो लोग थे, उन्होंने मुझे हिम्मत दिया कि नहीं होगा। कौन-कौन थे वो? मेरे प्रभु जी थे, मेरी माँ थी और 2 माताजी वो थे। माताजी और हाँ। तपस्या फ़ोन पर थी हाँ, हाँ, और वो हरिणी माताजी जी हरिणी जी आपके थे और साथ हाँ, थी। इंदुलेखा माताजी इंदुलेखा थे। साथ थी। हाँ जी। वो आपको कैसे दिलासा दे रही थी? वो कैसे आपको जब मदद कर रही मुझे थी? बहुत ज़्यादा दर्द होने के बाद ख़त्म हो रहा था दर्द, तब मैं माताजी को बोल रही थी कि माताजी मैं और नहीं कर पाऊँगी। तो माताजी बोली, नहीं हो रहा है, तुम्हारा बच्चा आ रहा है, देखो कुछ देर बाद तुम्हारा बच्चा आ जाएगा, तुम्हारे हाथ में आएगा तुम्हारा बच्चा। तो मैं ठीक है, ऐसा करते-करते मैं मतलब
आगे जा रही थी। एक-एक हाँ, कॉन्ट्रैक्शन को आप ये ले रहे थे। जी। और जब दर्द आपको महसूस हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो उस वक़्त आप क्या कर रहे थे? कुछ ब्रेथ वर्क कर रहे थे, साँस ले रहे थे, साँस ले रही टहल थी। रहे थे? नहीं, कैसे टहल नहीं मैनेज रही कर थी, रहे मैं थे? एकदम हाँ, लेट गई थी। लेट गए थे। हाँ, आपको नीचे। वहाँ आराम लग रहा हाँ था। जी। और जब बहुत ज़्यादा दर्द हुआ तब मेरी मम्मी मुझे पीठ पे दबा रही थी। प्रभु जी मेरे हाथ-पाँव सहल रहे थे ऐसे, और माताजी तो बोल रही थी, ना होगा, ऐसा नहीं, रो क्यों रही हो? That is to say that you were losing courage, but you still decided to be at home. This is because of the courage, I add. Madhuri continues, yes, I was given the courage because of the people around me. Who were these people, I ask? Madhuri says, my husband, my mother, and 2 midwives, and Tapasya Mataji was on the phone. When the pain increased, I said, I cannot do it anymore. When the pain increased, I said, I cannot do it anymore. I moved forward with their encouragement. How were you managing these pains? Were you using breathing techniques? Were you walking? I ask. She says, no, I was lying down because that was comfortable. My mother-in-law was rubbing my back. My husband was stroking me, comforting me. The midwives were saying the baby would be here soon. ऐसे उस टाइम करके। पे हम 2-3 पोस्चर, पोज़ीशन, जगह भी चेंज किए, जैसे मैंने पूल भी यूज़ किया। हाँ, हम एक डिवोटी से पूल लेके आए थे, वाटर पूल। यहाँ पर हम पूल उसको कंफर्ट के लिए, कोई बोल रहा था कि बाथरूम का जो कॉमोड उस पोस्चर पे है बैठो। हाँ उसको जी। ट्राई करो, नहीं हो रहा है। बिस्तर नहीं, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, आप जहाँ पर बैठे हो फ्लोर पे उसका बच्चा हुआ। हाँ। उसको लग रहा है नहीं, बिस्तर भी उसको और जब थोड़ा-थोड़ा उसका सर आ रहा था तो माताजी बोली कि उसको हाथ टच से करो, टच टच करो। करो। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मेरा बच्चा, मैं अब मतलब वो आ रहा है मेरे ज़िंदगी में, मैं उसको फ़ील कर पा रहा हूँ, मैं उसको टच कर पा रहा हूँ। मुझे ऐसा वो फ़ील बहुत ही ज़्यादा मतलब अनोखा था और बहुत अच्छा था वो फ़ीलिंग। आज भी याद या बिल्कुल ऐसा लगता है अभी हो जी, रहा है। मुझे हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तब। I used a water pool also for relief. Praneshwar Dasji adds, we got a big pool from another devotee. Some people were saying use the toilet seat, and that did not help much. You would not believe me where you're sitting right now. This is where her baby was born. Madhuri adds, when the head was coming, I was encouraged to touch it, and I felt my baby is here. He's coming. He's coming in my life. I can feel it. I can touch it. I felt out of this world. It was the most amazing feeling. मतलब 12 से 12 नहीं, 11 से 11 से 1 बजे तक, हाँ, 2 बजे तक, 12 से 2 बजे तक रात का ऐसा था कि मुझे ऐसा वो लग रहा था कि हाँ, मैं शायद मेरे पत्नी और बच्चे दोनों को मैं खो दूँगा। खो दूँगा। ऐसा मतलब उसका 0% भी एनर्जी मैं बचा बहुत नहीं है। चिड़चिड़ी हो गई थी। प्रभु जी बोले कि पानी पियो, मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मतलब आप शांत रहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा मैं सबसे कर रही थी। क्रूशियल पॉइंट वो हाँ, था। आपको उस वक़्त शायद लग रहा होगा कि लोग हैं पर हाँ, अभी नहीं ले चाहिए अभी मुझे नहीं कोई। चाहिए मुझे किसी का, अकेले मुझे रहना बात है। भी नहीं करनी किसी से। खुद कोप करना है, हाँ, कोई जी, नहीं जी, चाहिए जी, जी। बताने के लिए। हाँ, ऐसा लग रहा था। और जब 1 बजे से 4 बजे 3:50 तक तब थोड़ा-थोड़ा जब आ रहा, मतलब 11 बजे से 1 बजे तक थोड़ा-थोड़ा आ रहा था और फिर वो अंदर जा रहा था उसका सर। अच्छा। हाँ, और 1 बजे से 1 3:50 बजे तक जब उसने उसका बच्चे का सर टच किया, उसका एनर्जी मतलब क्या 0 मुझे से अभी 100 होगा, अभी हो जाएगा। 0 से 100 आ गया। वो जी। विश्वास ने हाँ। आपको ताकत दे दी जी, और जी। आपके दिमाग ने आपके शरीर को मदद करी हाँ। बच्चा बाहर आने में। यस। जब तक आपको विश्वास, हुँ, उससे हुँ। पहले आप कर रहे थे, मुझे पर ये विश्वास अंदर नहीं से हो रहा था कि विश्वास होगा नहीं, क्या? डर था। हाँ, डर था बहुत वो ज़्यादा। निकलते ही हुँ। वो ताकत आ गई और उसके बाद खुशी, वो कहते हैं ना एकदम अलग ही खुशी, और दर्द एकदम चला गया, हाँ, भूल गए। मुझे जब वो बाहर आया, मुझे मेरा पेन, मैं 2 रात से नहीं सोई, वो कुछ याद नहीं रहा। मैं बस उसको देख के मुझे लगा कि मेरा बच्चा आ गया बस। मुझे मेरा आप सब डर खत्म हो गया, मेरा दर्द खत्म हो गया। आप अभी भी बहुत अच्छे से उसको देख रहे हैं। और और हाँ, बस मुझे रोना आ रहा था। मैं प्रभु जी को बोला, देखो हमारा बच्चा आ गया। वो फीलिंग्स बहुत अच्छा था। Praneshwar Dasji adds, the last few hours were so difficult, I remember. I felt I would lose her. I would lose the baby. It was intense. She hardly had any energy left.
Madhuri completes. I had become very irritated. I did not want people around me. From 11 to 1, the head was coming out and going back in. But when I touched the baby's head, the energy shifted and the baby was born. Meaning you were scared before that, and once you touched the baby, there was a belief, there was trust, and there was no more fear. Madhuri says, yes, when the baby was born, I was so exhilarated, all the intensity was forgotten. There was no fear. I had my baby. It's here. I was crying and telling my husband, see, it's here. और इस सब में आपको किसी ने, जैसे आपकी माँ ने तो आपको दर्द में दबाया, हाँ किसी ने आपको हाथ लगाया, बोला ऐसे करो, हाँ वो माताजी, 2 माताजी। वो आपको जो हाँ, मिडवाइफ हाँ, आपको जी, जी, मदद जी। कर रही थी। उसके अलावा किसी ने आपको इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं किया, किसी ने आपको छू के नहीं देख, नहीं, कुछ भी नहीं। पता नहीं करने की कोशिश करी कि कितना समय लगेगा। आप जो बता रही थी वो सब सुन नहीं, रहे थे। माताजी बीच-बीच में चेक कर रही थी कि कितना हुँ। आ रहा है बच्चा। हाँ, अच्छा, हाँ। अच्छा। वो कैसे पेट पे हाथ लगा के नहीं या वो वैसे? एग्जामिनेशन से? एग्ज़ामिनेशन कर रही थी। अच्छा। और उसके बाद बच्चा हो गया तो कोई टेयरिंग हुआ था आपको? हाँ, ब हाँ, लेकिन वो इंदुलेखा माताजी और हरिणी माताजी जो थे, हुँ। उनका की टेयरिंग ज़्यादा था। हुँ, इसका कारण बहुत सारे हैं। हुँ, लेकिन उन्होंने कुछ सीवीड्स हुँ, यूज़ करने के लिए बोला कि वो सिलाई से ज़्यादा अच्छा वो काम करेगा। मेडिसिन आपको हर्बल दिया हाँ, हर्बल। और उसको स्टिच नहीं किया? नहीं, स्टिच नहीं किया। लेकिन हमारे मतलब बच्चा जन्म होने का टाइम पे जो टेंशन था, वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ गया बच्चा होने के बाद। हुँ, क्योंकि पता नहीं ऐसा करता है ना कि सब कुछ काम अगर इतना आसानी से हो जाता है तो वो याद नहीं रहता है। कुछ ऐसा होता है कि उसको याद रखने के लिए वो पॉइंट ज़रूरी है। वो पॉइंट था उसका, क्या कहते हैं प्रेज़ेंट इसको? प्रेज़ेंट था। बाहर नहीं आ रहा था अराउंड लाइक 9 आवर्स। हुँ, सुबह 4 4 बजे हमारा बच्चा हो गया। लेकिन वो हरिप्रिया माता जी और जो थे मिडवाइफ्स वो कह रहे कि आधा घंटा से 1 घंटे में आना चाहिए तो वेट करो। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसका नहीं आ रहा था। और बच्चा उस वक़्त दूध पी रहा था? हाँ। दूध पी रहा था वो। उन्होंने कहा कि अभी नहीं आ रहा, तुम शावर लो उसके बाद आ जाएगा। मैंने शावर भी लिया, मैं सो भी गई खा पी के, लेकिन फिर भी वापस वो नहीं आया। Did anyone help you with any position changes? Were there any internal exams? The vaginal exams? I ask. Madhuri says, yes, the midwives were guiding me and also checking where the baby was. Was there a tear after the baby was born? I ask. Yes, a lot, Madhuri says. Pranishwar adds, Indulekha and Harini Mataji said that the tear was more, but they gave us a seaweed to use, and instead of stitching or sutures, this was used. But our tension was increased so much more after the baby was born. The issue was that the placenta was not coming out, and it had been 9 hours. The midwives were saying, usually half an hour to 1 hour, it comes out. You were breastfeeding, right? And it was still not coming out. I add. Madhuri says, yes, I was. The midwife suggested to go to the toilet and try pushing, take a shower. I even slept after a meal, but it did not come out. रिलैक्स करने से ऑक्सीटॉसिन हार्मोन शायद ऑक्सीटोसिन। तो वो रिलीज होगा। हम सब ट्राई किए, तब शायद सुबह 10-11 बजा है। मैंने अभी प्रभु जी तक से नहीं। पूछा कि कुछ होगा, डरने वाली कोई बात है? प्रभु जी, नहीं, नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं अकेली घर पे कमरे में थी और बाहर वो सब रो रहे थे। लेकिन घर के बाहर। बाहर जो माहौल बना हुआ था ना, वो बस मैं जानता था। इसको मैं आज भी आना नहीं दिया कि क्या हो रहा है घर दरवाजे के उस पार, क्या हो रहा है। आपने सँभाल लिया। मैं समझ घर गया। वाले डर गए थे, आप ये बहुत कहना ज़्यादा, चाहते हैं? हाँ। क्योंकि 3 दिन चला और 3 दिन हाँ। चलता है हाँ। बहुत लोगों का लेबर, बट उनके लिए शायद नई चीज़ जी, थी। हाँ, जी। वो प्लेज़ेंटा का जो पॉइंट था वो सबसे ज़्यादा। फिर ऐसा हुआ, मैं सबको, मैंने तपस्या माता जी को भी फ़ोन किया, माता जी ऐसा करो, कुछ भी नहीं, टेंशन मत करो, आप रिलैक्स तपस्या रहो। माता जी को 5 मिनट बाद मतलब हाँ, बात ही हम, फ़ोन माता जी करे क्या थे। करें? माता जी नहीं हो रहा है।
मतलब तपस्या माता जी को मैं क्या कहूँ, कोई एक लोग पास में भी ना रह के कैसे सपोर्ट किया जाता है, ही इज आइडियल एग्जांपल, शी इज आइडियल एग्जांपल। तो वैसा ही। तो फिर 11 बज गए, तब एक मिरेकल हुआ, वो मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक डिवोटी फ्रेंड है, मैं पहले जिसका बात कर रहा, जिन्होंने होमवर्क किया, इज लाइक माय फ्रेंड। तो उन्होंने किसी कारण गंगा तट पे गया, किसी एक पूजा या फिर किसी एक कारण। तो तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने सुना कि मेरा पत्नी लिवर पेन से जा रहा है और उसका एक प्रॉब्लम हुआ है। तो वो गंगा माँ से, गंगा माँ प्लीज, आप तो माँ हो, आप सब कुछ सही कर सकते हो, तो मेरे जो फ्रेंड का पत्नी है उसको भी ठीक कर दो। सब कुछ ठीक कर दिया, इतना सा कि ऐसा कुछ एक प्रे किया, और उसने थोड़ा सा गंगा जल लेके आया, और वो गंगा जल लेके बस इसको पिलाया विदिन 10 मिनट्स। हाँ, 10 मिनट्स, जो 10 घंटे से नहीं हो रहा था, गंगा जल पीने के तुरंत ही 10 मिनट बाद वो मतलब झपाश करके वो सब क्लियर हो गया। मतलब, और ऐसा हुआ इससे आधा घंटा पहले मेरा भाई, मेरा माँ, ऐसा लग रहा है कि गन पॉइंट पे मुझे रखा है, तू क्या करना चाहता है, तू इसको जल्दी हॉस्पिटल भेज। ऐसा हुआ कि मेरे घर के सामने एम्बुलेंस खड़े हुआ था, एम्बुलेंस सच है। लेकिन मैंने बोला कूल, देखता हूँ और 10 मिनट और 15 मिनट, ठाकुर जी है ना। I asked my husband, will everything be okay? He said, yes, all is well. I was resting alone inside, but outside, the family, everybody was crying. Praneshwar begins. There was a tough scene outside with the family. Everybody was scared. I did not give her the details of that still. They were scared because the placenta was not born. Madhuri says, we kept calling Tapasya Mataji every 5 minutes. She adds. Praneshwar says, she said all is well. Even when she was not here, she supported us a lot. Then a miracle happened. My devotee friend, who had a home birth and who inspired us, he brought Ganga Jal, water from the holy river Ganga. After praying for us, he brought it to us and we had it. And within 10 minutes, the placenta was out with the blessing of the God. Everybody was after my life that this is not okay, go to the hospital. कुछ ना कुछ कर देगी, और इतना दूर बच्चा ठीक था, आप बच्चा ठीक ठीक, थे हाँ, हाँ, हाँ। माधुरी जी, आपको कोई दिक्कत नहीं नहीं। थी, आपको कहीं कोई बुखार, कुछ भी नहीं, ऐसा कोई नहीं, नहीं, सिम्टम, नहीं, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग, नहीं, कुछ नहीं, भी नहीं ऐसा था, कुछ नहीं। कोई सिम्टम नहीं था, तो आप ठीक थे। लेकिन एक्चुअली वो ठाकुर जी ने क्यों किया, एक चीज के लिए जो सबके लिए एक लेसन है। तब मैं इस पूरा 9 महीना जिस डॉक्टर के पास जा रहा था, उस डॉक्टर को मैंने फ़ोन किया, सर ऐसा ऐसा हुआ, एक प्रॉब्लम हो गया। हम उनको सच बात नहीं बोले, क्योंकि सच बोलेंगे तो घर में हम किए तो वो बोले तुम ऐसा ऐसा। तो मैंने बोला सर सडनली हो गया रात को, हमको पता भी नहीं चला, ऐसा ऐसा हमने झूठ बोला, झूठ बोला। तो वो डायरेक्टली डिनाई कर दिया कि मैं आपकी पत्नी को रिसीव नहीं कर सकता, आप इसको सरकारी अस्पताल में दाखिल करो। उन्होंने डायरेक्टली आपको डिनाई कर दिया डायरेक्टली कि डिनाई, क्योंकि बच्चा घर में हुआ घर में है, हुआ तो है, प्लेसेंटा में अगर कोई हाँ मदद हाँ चाहिए हाँ तो हाँ, हम नहीं करेंगे। डायरेक्टली। आपको मैं मतलब मैं ऐसा लगा कि मतलब मैं मतलब मेरा ध्यान नहीं था, मैं मतलब जो मेरा लस्ट होप था, लस्ट वाला, वो भी ऐसा कह दिया, मैं क्या करूं। तब बस ठाकुर जी चाहते थे कि भाई तू मेरे ऊपर पूरा शरणागत हो जा, तभी जब मैं, तक पूरा विश्वास नहीं होगा, हाँ वो आपका विश्वास पक्का किया उन्होंने किसी बस तरीके वही। से। You were okay after birth, no? There was no excessive bleeding, no fever. All was okay, right? I interrupted. Praneshwar Das ji says, yes. Why this happened, I think, is because I called the doctor when the placenta was not out and I lied to him that the baby was born by chance at home and we need help with the placenta now. And he denied. He straight away said, no, I cannot take you in. You have to go to a government hospital. I was disappointed, and this was to instill complete faith in Krishna, to surrender to him, I guess. That was the lesson. The doctor had instilled a lot more fear in us. He said that my wife will have an infection and she'll not be able to conceive again.
You were scared into a lot more things than being helped with what to do, I say. तब मतलब सच में वो जब लाइन मैंने सुना ना, सॉरी प्राणेश्वर जी, मैं आपको इस टाइम कुछ हेल्प नहीं कर सकता, आप सरकारी अस्पताल में उसको दाखिल करो, क्योंकि वो इन्फेक्शन हो सकता है ज़िंदगी भर के लिए, उसका जो मतलब फिर से प्रेग्नेंट होना, फिर से प्रेगनेंस में उन्होंने आना, वो आपको सब और डराया और और ये डरा दिया। नहीं बताया कि आप क्या कर सकते हो हाँ। ठीक करने के लिए। तो बस वही गंगा जल मेरे पत्नी को फिर से जीवन दान दिया। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, और क्या बस उसके बाद तपस्या माता जी तो कहा, मतलब उन्होंने ऐसा इट्स इट्स नॉर्मल ना प्रांशु जी, आप टेंशन के लिए, तो मैं कह रहा अरे टेंशन ना लो, मैं इस जगह पे हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है, जो कह आपके रहा है ऊपर भी बहुत प्रेशर था, है ना? बहुत। इस वजह क्योंकि तपस्या को ने तो देखा है 7-8 घंटे प्लेसेंटा लेता है आने में। अगर माँ ठीक है, बच्चा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो नहीं इतनी देखिए, कोई अगर मेरे पास में अगर कोई ऐसा एक पॉजिटिव कुछ रहता, वाइब तो पॉजिटिव वाइब्स रहता तो ठीक है, लेकिन 100% लोग जब कह रहे हैं हॉस्पिटल भेज इसको, प्रेशर बहुत एम्बुलेंस, था। तो अकेला क्या डिसीजन, और हो सकता है पत्नी मेरा, लेकिन घर का मेंबर है, सबको उसके लिए टेंशन हो रहा था। Yes, and Tapasya Mataji said that this is normal, it happens. There was nothing ever to worry about, but I had a lot of pressure on me, you know. Yes, placenta does take time. It takes so many hours to be born, and Tapasya has seen it numerous times in her practice. If the mother and the baby are okay, it is fine. If this positive reinforcement was here with me, things would have been different. People around me were paranoid and only wanted to rush to the hospital. So it was stressful because of that too. आपका कभी दूसरा बच्चा होता है तो भी आप होम बर्थ ही करेंगे? जी। माधुरी जी आके बताइए। अभी मुझे मतलब विश्वास हो गया कि घर पे बहुत अच्छा होगा, हॉस्पिटल से ज़्यादा अच्छा होगा घर पे, इसलिए मैं अगर मेरा दूसरा बच्चा भी हो, मैं घर पे ही करूँगी। घर पे ही करें। जी। And despite all of this, I would still ask you, if you ever decide to have another baby, would you do it at home again? Madhuri chuckles and says, Yes, it was so good and better than the hospital. I will go for home birth. Nothing better than this and nothing bigger than this. This explains it all, I say. इससे बड़ी बात तो कोई और है ही नहीं। एक और सवाल हम अपनी रिकॉर्डिंग ख़त्म करने से पहले, जो आपको टेयर्स हुए थे, आप बोल रहे थे बहुत ज़्यादा हुए और उसमें सीवीड और हर्बल और भी जो आपको हरनी और बाकी सब ने बताया, उससे कितना फ़ायदा हुआ और कितनी जल्दी हील हो गया? वो 2-3 हफ्ते में हील हो गया मेरा। और कोई दिक्कत नहीं कोई वॉशरूम दिक्कत जाने नहीं, में, नहीं, कोई इचिंग, नहीं। बैठने वॉशरूम पहला जाने एक में हफ्ता। 1-2 दिन दर्द हुआ, उसके हाँ, बाद दर्द। धीरे-धीरे वो ठीक हो गया। बहुत बड़ा नहीं था कुछ, आपको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं नहीं, थी? नहीं, नहीं। मुझे जो माताजी ने बोला, उन्होंने बोला कि मेरा हुआ तो मैंने वो स्टिचेस लगाए, तो उसमें ज़्यादा दर्द होता है। अगर तुम स्टिचेस नहीं दोगे तो उसमें दर्द नहीं होगा और वो तुम्हारा। आपके साथ यही हाँ हुआ जी। कि बहुत कम दर्द और बहुत जल्दी हील हो हाँ गया? जी, जी। One more question before we leave. The tears you had, the vaginal tear you were speaking about, how long did it take to heal? Madhuri says, about 3 weeks, and it was completely okay. You had no issues with going to the washroom, or did you have any itching, Madhuri? Just the first few days, it was painful. I was told that one of the midwife had her tear stitched, and it is far more painful. And that is what happened. Little pain for me, and it healed so much better and in such less time. ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू माताजी। थैंक यू। Home births are not always uneventful, and a lot of natural processes have a range of normal. A mother can birth her placenta in about 30 minutes, 1 hour. Another woman might take 3 hours, another 7, another 9. The role of midwives and the birth support team is to encourage, help the family understand that all this is normal. We have been feared into childbirth so much more that we think hospitals and trying to get the placenta out
using hands, which can cause hemorrhage, which can cause a lot more infection, is safer because we have drugs to stop the infection, because we routinely give more drugs to stop the bleeding, whereas the entire process of taking the placenta out by hand causes all these side effects. Whereas the placenta can actually just come out in time, and there are rare chances that a manual extraction of the placenta is required. I hope this episode was helpful. We'll come back again with another birth story very soon. Thank you so much. There is a field beyond fear, where the body is empowered to take on labor and birth. To land there, it is crucial to take birth education. To enroll into our unique labor and birth preparation course, reach out to us at www.birthagni.com or scroll through all available prenatal and postnatal preparation classes. Thank you for listening, all in the spirit of birth, womanhood, and freedom. Remember, you got the power. This podcast is about physiological birth and does not offer or claim to provide medical knowledge or diagnosis.